So today's topic is importance of communication skills and career growth. So what I'll do is I'll keep my medium of communication 50% Hindi, 50% English, keeping in mind the audience that we have. My learnings in communication skills are based on my career, which has been spread over some 25 years. And I have served in many roles in corporates as well as in academics. So in my present role, I'm a communication skills expert and I impart English communication skills training to students. And I also prepare them for job interviews. I have helped many students to land in good jobs by polishing up their communication skills. You should all start your journey of improving your communication skills. तो जो भी आपको learnings मिले मेरे सेशन से आज, आप भी अपनी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को आज से ही मजबूत करना शुरू करिएगा. As I've told you, over last 5 years, I've been imparting placement training, especially in communication skills to students. I've also trained them in corporate manners and etiquettes. मैंने उनको ग्रूमिंग सेशंस दिए हैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश कम्युनिकेशन के साथ. यू कैन मेक अ हेड स्टार्ट एज फार एज योर करियर इज कंसर्न इफ यू स्टार्ट विद इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स. यू कैन टेक योर एजुकेशन टू इट्स लॉजिकल एंड. जो आपकी एजुकेशन है, जिस वास्ते आपने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी है, उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है कि आपको एक अच्छा जॉब मिले. And this can only happen when you have good communication skills. English communication skills have got a direct link with your career growth. तो English communication skills जो हैं आपके career growth से directly linked है. इनका एक direct proportion है आपके career growth से. So better your communication skills are, the better your chances are of landing in a good job, in a reputed organization. That is, you will have a very good head start in your career and you will have a very good package in a very good brand. So in this era of dynamic and competitive business environment, the English language has become an important element in the corporate ecosystem. It will not be wrong to say that English is the mother tongue of the corporate world globally. College gives you a lot of platforms, like in terms of extracurricular activities. You can participate in these extracurricular activities and have the necessary practice. तो अगर आपको डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले, कॉलेज में वेबिनार एंकरिंग करने का मौका मिले, तो यू कैन यूटिलाइज ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स एंड ग्रेजुअली डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आज की डेट में कॉर्पोरेट में कोई लैंग्वेज यूज की जाती है तो वो इंग्लिश है. इंग्लिश फ्लुएंसी एक्चुअली ओपन्स डोर्स फॉर ऑल द कैरियरिस्ट फॉर गेटिंग प्लेस्ड इन गुड ऑर्गेनाइजेशन. आपकी कंपनी की मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको कंपनी को रिप्रेजेंट करना होता है. बोर्डरूम मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ती है. यू हैव टू मेक प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ योर एम्प्लॉयर्स. सो ऑल दिस विल कम इन हैंडी व्हेन यू गो एंड जॉइन अ कॉर्पोरेट. एंड एज फार एज योर पर्सनल डेवलपमेंट इज कंसर्न, you not only have to read the textbooks, you have to listen to the podcast by important English business leaders. If you are able to understand them, then you will be able to do a lot of value addition to yourself, and then you will be able to move ahead in your career. So English, as we also know, is the language of internet. ये दौर है वो इंटरनेट का है. If you go to Google search engine, वहाँ पर भी सब चीजें इंग्लिश में ही हैं. If you search information on the Wikipedia, it's also there in English. Learning English language will build up your confidence. अगर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आप नए नए मुकामों को हासिल करते हैं. You can go to the level of vice president, president, and there are exceptionally high-paying jobs. But the primary requirement in these jobs is that you should have English language skills. It will also maximize your potential. मैंने आपको बताया ना कि सेम अमाउंट ऑफ एजुकेशन में जो भी आपकी डिग्री है उसके ऊपर अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का तड़का लगा लिया, इट विल एक्ट एज एन आइसिंग ऑन द केक एंड इट विल एनहांस योर वैल्यू एज अ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स. तो आप एक ग्लोबली एक नौकरी करने के योग्य बन जाएंगे. You will be a human resource that can be employed anywhere in the world, like places like Singapore, Australia, Middle East, and then you will end up earning in dollars. More than 45 countries, English is used as a primary or secondary language. Okay, this you have to understand. Suppose you want to do your higher education, your master's degree or your PhD in some foreign university, then again you will have to face entrance examinations like SAT, TOEFL, GRE, GMAT. And all these examinations are there to test your English ability. अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड है तो आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन कंट्रीज जा सकते हैं. अपनी हायर एजुकेशन चाहे रिसर्च में करना चाहे किसी भी फील्ड में, तो आपकी सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट की जाएगी. और अगर आप वीजा लेने भी जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही होने वाला है.
नाउ एज फार एज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर कंसर्न, हमको सबको मालूम है कि अभी ओलंपिक्स जो हैं वो टोक्यो में हो रहे हैं, right? So whenever a participant goes there, so he has to interact with fellow participants, he has to interact with the coaches and media persons. So again, English language is required there. Now, if you are doing global business, then also English becomes a primary language of business throughout the world. अगर आप एक अपने बिजनेस को और कंट्रीज में फैलाना चाहते हैं, again the common language becomes English. If you want to travel, to different places, even on account of business, then also you'll have to interact with the hotel staff and they will use English language. If you travel by a cab, then also the driver will speak English language. So you cannot just escape from it. One cannot become an engineer or doctor or scientist or pilot without a proven efficiency or proficiency in English language. क्योंकि आपकी जो सारी टेक्स्ट बुक्स हैं वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में हैं. तो अगर आपको अपने कॉलेज की एजुकेशन भी करनी है तो आपके पास एक कॉलेज लेवल की वोकैबुलरी होनी चाहिए. कॉलेज लेवल की अगर वोकैबुलरी होती है तो हमको हमारा टेक्स्ट बुक्स आराम से समझ में आती है. जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. सो दोज हु वांट टू एक्सपैंड देयर mental horizons, expand their knowledge base, again English language, knowing English language is inevitable for them. It is the language of the internet, it is the language of the new technology. Just imagine कि आप वो सारी information access कर पाएंगे जो बाकी लोग नहीं कर सकते. You can talk or write to letters to people जो कि बाकी लोग नहीं कर सकते. You can impress other people by your English communication skills. You can make big jumps in your career. So when it comes to improving your communication skills, आपको 4 फ्रंट्स पे काम करना है. तो जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी के 4 टायर होते हैं, इसी तरह इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के भी 4 टायर हैं. ये हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. तो अगर हमको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो हमको एक तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, लिसनिंग, हमको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, स्पीकिंग, हमको इंग्लिश रीड करना आना चाहिए और हमको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए. तो अगर आप ये चारों चीजें कर सकते हैं देन ओनली यू विल बी कॉल्ड एन इंग्लिश कम्युनिकेशन एक्सपर्ट. इसका शॉर्ट फॉर्म है LSRW. L stands for listening, S stands for speaking, R stands for reading and W stands for writing. So if you have good listening comprehension, अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह समझ में आती है तो you will have access to such a lot of information. So what is listening? Listening is that you should be able to fully understand what you hear. It is about listening effectively and it is also about listening comprehension. Now how to develop this? You can use headphones. अगर आप headphones use करके बहुत ही concentration के साथ सुनेंगे then you will be able to pick up words और धीरे धीरे आपको उसका pronunciation भी समझ में आएगा और वो language आपको समझ में आएगी. आप just imagine करिए कि घर पे जो भी आप language बोलते हैं वो भले ही हिंदी हो चाहे वो साउथ इंडियन लैंग्वेज हो, वो आपने कैसे सीखी? वो आपने सुन के सीखी. बचपन में किसी ने आपको बैठ के सिखाया नहीं, आप सुनते गए और वो लैंग्वेज आपको आ गई. अगर आप किसी नए शहर में भी जाते हैं तो आपको कोई भी लैंग्वेज सुनाई देती है तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगती है. सो लिसनिंग हैपेंस टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट कम्स इज स्पीकिंग. सो यू शुड ऑल्सो बी एबल टू lucidly speak and express your ideas and thought in English. So how can you do that? You can form a group of 4-5 friends, start talking to each other in English. Okay, so when you are in a leadership position in corporates, you will be required to address employees. You'll have to guide all people who are under you. You will have to make presentation. Again, your public speaking skills, your speaking skills, everything will be put to test. Reading. You should be able to understand the written word. अगर आप एक मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो आपके सामने रिपोर्ट्स आएंगी, आपके सामने डेटा आएगा जो कि अगेन इंग्लिश में होगा. यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द रिटन वर्ड एंड बेस्ड ऑन योर कॉम्प्रीहेंशन यू शुड बी एबल टू मेक डिसीजंस. देन द फोर्थ थिंग दैट विल कम इज राइटिंग. राइटिंग विल बी दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू राइट मेमोज, ईमेल्स, पैराग्राफ्स, एसेज एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश. तो मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फ्रंट्स पे आपको वर्क करना है. अब मैं आपको बताऊंगा 10 टिप्स. मैं आपको 10 ऐसी टिप्स दूंगा कि कैसे आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकली आप ठीक कर सकते हैं. और ये बहुत ही आसान है. मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो कि आप आज से शुरू कर सकते हैं. और ये अगर आपने आज से शुरू कर दी, आपको 6 महीने के अंदर अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इंप्रूव हुए नजर आएंगे. तो एक एक करके हम देखते हैं कि वो टिप्स क्या हैं. सबसे पहला है बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड सेकंड इज कीप योर ईयर्स ओपन. कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो आपको अपने कान खुले रखने पड़ेंगे. लिसन वेरी अटेंटिवली,
पिकअप न्यू वर्ड्स, आप नए नए वर्ड्स जो हैं वो पिक करिए। आप इंग्लिश न्यूज चैनल्स देखिए, आप ध्यान से हेडफोन्स लगा के सुनिए एंड ट्राई टू पिक अप न्यू वर्ड्स। वॉच मूवीज इन इंग्लिश, लिसन टू सॉन्ग्स इन इंग्लिश, हैव फन विद इट। उसको एक फन की एक्सरसाइज की तरह लीजिए। द थर्ड थिंग इज दैट मेक फ्रेंड्स विद इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर्स। आपके जितने भी दोस्त हैं जो इंग्लिश में अच्छा बोलते हैं, आप उनके साथ दोस्ती करिए, अपनी प्रोग्रेस उनके साथ डिस्कस करिए, तो धीरे धीरे आपकी भी एक इंग्लिश पे पकड़ मजबूत होती जाएगी। फोर्थ टिप इज दैट यू शुड रीड एन इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आप ऑफलाइन चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। रीड फुल सेंटेंसेस और जोर जोर से पढ़िए, तो आपकी फेशियल मसल्स जो हैं दे विल गेट यूज्ड टू योर इंग्लिश। तो आप इसकी शुरुआत जो है वो न्यूज़पेपर से कर सकते हैं। फिफ्थ टिप इज दैट यू शुड यूज अ डिक्शनरी। आपको अपने पास एक छोटी सी पॉकेट साइज डिक्शनरी रखनी है, जैसे कि ये है, अगर आपको दिख पा रही है तो दिस इज द पॉकेट साइज डिक्शनरी। यू शुड कीप इट विद योर सेल्फ। इट्स एन ऑक्सफोर्ड पॉकेट साइज डिक्शनरी। कहीं भी आपको टेक्स्ट बुक्स में कहीं भी नया वर्ड आए उसको आप रेफर करिए। और ऑनलाइन डिक्शनरी भी होती है जो हमारे मोबाइल फोन पे होती है, उससे हमको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आता है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द फिफ्थ टिप। सिक्स्थ टिप इज दैट यू शुड डू इंटरेस्टिंग थिंग्स। जैसे आपको कोई हॉबी वगैरह है, यू ट्राई टू परस्यू दैट इन इंग्लिश। आप कोई लिटरेरी क्लब ज्वाइन कर लीजिए, कोई बुक रीडिंग क्लब ज्वाइन कर लीजिए। डू थिंग्स दैट यू एंजॉय इन इंग्लिश एंड यू कैन ऑल्सो डिबेट। आपने कोई चीज पढ़ी है न्यूज़पेपर में तो आपस में डिबेट कर सकते हैं। सो डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज इन इंग्लिश। सो दिस इज द सिक्स्थ टिप। नाउ द नेक्स्ट टिप इज दैट यू शुड इंप्रूव योर वोकैबुलरी। अगर हम 2 से 3 वर्ड सिर्फ इंग्लिश के रोज याद कर लें, और तो महीने में अगर 20 दिन भी करें तो ये 60 वर्ड हो जाते हैं, और साल भर में लगभग 800 वर्ड्स हो जाते हैं। जहां आपके 800 से 1000 वर्ड्स हुए तो आपकी इंग्लिश का एक अच्छा लेवल बढ़ जाता है और फिर आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। तो आप अब एक रूल बना लीजिए कि मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी डेली याद करूंगा। मैंने तो करीब 1.5 साल में पूरी एक डिक्शनरी याद की थी। ये देखिए, आप क्या करिए कि A4 साइज पेपर लीजिए, उसको वर्टिकली फोल्ड करिए, एक तरफ वर्ड्स लिखिए, उसके पीछे उसका मीनिंग लिखिए और उसको पॉकेट में रख लीजिए, और उसको दिन में जब भी फ्री टाइम मिले आप उसको रेफर करिए। धीरे धीरे आपको 3 से 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स याद हो जाएंगे और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगभग 800 to 1000 वर्ड्स याद हो जाएंगे। 8th टिप इज मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपना जो भी प्रैक्टिस करें मिरर के सामने करें या अपने मोबाइल फोन पे रिकॉर्ड कर लें। तो जो भी आप गलती कर रहे हैं आप देखेंगे कि कहां आप गलत जा रहे हैं, कहां आपको सुधार करना है। तो मेक मिरर योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक, आप एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। शाम को घर जाके एक डायरी लिखिए कि आपने आज दिन भर में क्या सीखा। यू कैन राइट लेटर्स, यू कैन राइट पोएम्स। तो धीरे धीरे आपका रिटन एबिलिटी भी सुधर जाएगी। लास्ट टिप इज दैट यू शुड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बिकॉज इंग्लिश इज अ कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश जो है वो स्किल है। स्किल तब आती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यू कैन यूज टेक्नोलॉजी, यू कैन यूज एप्स टू प्रैक्टिस इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, और तब जाके यू विल रीच द लेवल ऑफ परफेक्शन। बी इट एनी फील्ड, इट कैन बी आर्ट, साइंस, computers, all the information you will be able to access because of your English communication skills. So it will open doors for you actually. So nowadays we are surrounded by English. Understanding English becomes very, very crucial. This is a global world. Everything is connected. English is everywhere. When you will learn English, you will get satisfaction. You can actually push your career forward by learning English language. If you want a good job in business, then you should get out of your armchair and start making efforts to improve your English. May you all be motivated to improve your English communication skills and learn English. YouTube पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं, उससे आपको और भी इनपुट्स मिल जाएंगे. So this was a session on importance of communication skills.